उसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। तो रिसेंटली आई टोल्ड यू ना, आई पिक्ड अप फ्यू बुक्स फ्यू मंथ्स एगो। उसमें से वन बुक विच आई started reading and I found it's very interesting is called as Reinventing Yourself. इस किताब का टाइटल है Reinventing Yourself and written by Steve Chandler। और यहां पर देख सकते हैं कि हाउ टू बिकम द पर्सन यू हैव ऑलवेज वांटेड टू बी। Reinventing Yourself by Steve Chandler, how to become the person you have always wanted to be। यानी हम लोग लाइफ में अपने आप को ना एक नया वर्जन देना चाहेंगे। वी वांट टू गिव आवरसेल्फ अ न्यू वर्जन, अ न्यू लुक, एक नयापन अपने आप के अंदर हम सब लोग लाना चाहते हैं। तो उसके लिए बहुत सारी चीजें हमें हमें करना पड़ता है खुद के साथ। अपने आप के अंदर बहुत सारे बदलाव हमें लाना पड़ता है। तो उसके लिए कुछ सजेशन स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताया जा रहा है इस किताब के अंदर बाय स्टीव चैंडलर। अच्छा, अ वेरी गुड बुक, अ वेरी सिंपल बुक। इट्स नॉट वेरी बल्की लाइक द प्रीवियस वन जो मैंने आपको लास्ट टाइम रॉबिन शर्मा जी का जो बुक एवरीडे हीरो, दी एवरीडे हीरो मैनिफेस्टो के बारे में मैंने बताया था। दिस इज अ वेरी सिंपल बुक, अ वेरी थिन बुक आई वुड से कंपैरेटिवली, और अबाउट 220 पेजेस, 220 पेजेस। So it's very handy, you can carry it wherever you go. That's about this book। चलिए, इस बुक के अंदर there are many chapters। if you look at this, almost we have 46 chapters, 46 chapters, and all are tiny chapters and very interesting capsule type वाला है जो I always love because today's generation they love। सभी लोगों को आजकल ना बहुत सिंपल रहना पड़ता है, बहुत ही इजी तरीके से अगर बताया गया तो लोग पसंद करते हैं। तो इस किताब का जो 46 चैप्टर्स है, इसके अंदर यू कैन सी द चैप्टर नेम्स, आई एम जस्ट रीडिंग इट फॉर यू। रिमूव योर बॉल एंड चेन, that is the first chapter। The second chapter is life is and then you die, astonishing human creations, set yourself free from I gotta be me, we make ourselves miserable or strong। उसके बाद the ultimate mass seduction, it's not about your flesh and blood, dying inside your comfort zone। so बहुत सारे अच्छे अच्छे chapters यहाँ पर है, but I have selected something very nice today जो मुझे अच्छा लगा आज आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। that is called as engineering dreams into reality, chapter number 35, chapter number 35, जिसका टाइटल है इंजीनियरिंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी। ये मुझे टाइटल बहुत अच्छा लगा और पढ़कर भी मुझे अच्छा लगा चैप्टर। बट द थिंग इज, हम सब लोग अपने लाइफ में ड्रीम्स की बात करते हैं, गोल्स की बात करते हैं। सो दिस इज समथिंग विच वी ऑल कैन रिलेट वेरी इजीली। सो आई हैड मेड अ मार्कर आल्सो सो दैट आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू। चलिए, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, लेट मी रीड इट फॉर यू। पहले मैं पढ़कर बता देता हूँ, फिर उसके बाद लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस। एंड आई थिंक टुडे मेनी पीपल हैव जॉइंड विद देयर फैमिली मेंबर्स आल्सो। बहुत अच्छा लग रहा है, राइट? लेट मी गो इनटू द reading part। Okay, so listen closely। Engineering dreams into reality, chapter number 35। most of my life, author हमें कहते हैं कि ये लेखक जिन्होंने ये किताब लिखा, स्टीव चैंडलर, वो कहते हैं कि most of my life I have hated motivational speakers। in fact, when my old friends hear that I have become a motivational speaker, they are shocked। Of course, we all know that no one can be motivated by another person, not in the long run। motivation has to come from within, or else it's worth nothing। that's why I disliked motivational speakers so much, because they wouldn't motivate me, they wouldn't stimulate me, they would stimulate me emotionally with stories about athletes who overcame handicaps, and just when they got me hooked into their feelings of hope, they would leave my life forever and try as I might, I could never get the feeling back। instead of giving me something to use, they gave me a big noisy emotional high, and the sense that that was a great speaker। to me, motivational speakers were like secular evangelists prancing across the stage, their voices soaring with drama as they told stories about the people they had never met, doing heroic things that they themselves would never dream of doing। most of them sounded like they memorized their third-hand stories from old copies of Reader's Digest। to see these motivators in person was not a pleasant experience,
most dressed like morticians and flew across the stage like they had just shot up methamphetamines before being introduced. So first चैप्टर का फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ा यहां पर। तो इसका समरी सारांश अगर मैं बताऊं तो ये कहते हैं कि इनके लाइफ में ये मोटिवेशनल स्पीकर से बहुत नफरत करते थे या उनको पसंद नहीं करते थे। उसका कारण ये कहते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर्स जो कहते थे स्टोरीज, जो मोटिवेट होकर लोगों को मोटिवेट कर रहे थे, मोटिवेशनल स्पीकर से इनको मतलब इतना अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि ये इनको पता था अंदर ही अंदर से कि मोटिवेशनल स्पीकर्स या मोटिवेशन की बात सुनने से हम कुछ समय के लिए मोटिवेट तो हो जाते हैं, इमोशनली हम लोग मोटिवेट हो जाते थे, लेकिन वो परमानेंटली हमारे अंदर रह नहीं पाता था वो मोटिवेशन। तो उसकी वजह से इनको हमेशा मोटिवेशनल स्पीकर से नफरत हुआ करता था। लेकिन आज ये खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके हैं, और इस बात को सुनकर इनके दोस्त लोग हैरान हो गए थे, क्योंकि ये खुद मोटिवेशनल स्पीकर को लाइक नहीं करते थे, लेकिन आज ये खुद मोटिवेशनल स्पीकर बन गए। और ये कहते हैं कि कभी कभी मोटिवेशनल स्पीकर्स को डायरेक्टली 1-to-1 जब उनके साथ रूबरू उनसे मिलना होता था, वो लोग जो बातें करते थे बड़ी बड़ी मतलब एथलीट्स या अचीवर्स की एग्जाम्पल्स को लेकर लोगों को मोटिवेट करते थे, उन लोगों को रियल लाइफ में वाकई में वास्तव में 1-to-1 में जब वो मिलते थे ना, इनको अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि वो लोग जो कहते थे वो सिर्फ बाकी लोगों को मोटिवेट करने के लिए हुआ करता था, लेकिन अपने लाइफ में वो सारी चीजें जो लोगों को बताया जा रहा था उसे शायद ही इन लोगों ने अप्लाई किया था उनके लाइफ में। तो उसकी वजह से ये खुद मोटिवेशनल स्पीकर से इतना ज्यादा मतलब इनको मोटिवेशनल स्पीकर्स इतना ज्यादा अच्छा नहीं लग रहे थे, राइट। दिस इज अबाउट द फर्स्ट थिंग। एंड कभी कभी ये कहते हैं कि मोटिवेशनल स्पीकर्स थियोरेटिकली लोगों को कहते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उसे अप्लाई करते हैं कि नहीं करते उसका कोई गारंटी नहीं है। दैट्स व्हाट ही इज टेलिंग। एंड सेकंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर नंबर 35 में इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, एंटर अ मास्टर ऑफ द माइंड। अच्छा, इसी दौरान एक दिन, वन डे, आई मेट अ डिफरेंट काइंड ऑफ मोटिवेटर। हिज एंटायर फोकस वॉज ह्यूमन थॉट, not sentimental emotion. His commitment was to teach the inner workings of the mind so that people could, in his words, master their minds forever. He had founded a company dedicated to that end, and he called it the Mind Masters Institute. अच्छा, इसी दौरान स्टीव शैंडलर जो इस किताब के लेखक हैं, ये कहते हैं कि वो इसी दौरान एक इंसान से मिले जिस इंसान का जिंदगी का मकसद ये बन चुका था कि वो लोगों को ये सिखाए कि माइंड से कैसे हम डील करें, अपने मन को हम लोग कैसे हैंडल करें, जैसे मास्टर्स ऑफ देयर माइंड, यानी अपने मन की जो पकड़, एक मजबूत पकड़, एक कंट्रोल हम खुद ला पाए। इस प्रकार की टीचिंग्स और इन चीजों पर ज्यादा फोकस्ड थे जिस इंसान से ये मिले थे। और वो इंसान बाकी मोटिवेशनल स्पीकर्स के जैसे सेंटिमेंटल इमोशनल चीजें बताकर लोगों को मोटिवेट नहीं कर रहे थे, बल्कि लोगों को ये सिखाने के ऊपर उनका फोकस रहा कि कैसे अपनी मन को कंट्रोल में लाया जाए। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। और जिस इंसान की बात कर रहे हैं उस इंसान ने माइंड मास्टर्स इंस्टीट्यूट का एक फाउंडर भी वो बन चुके थे। उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन को भी मतलब शुरू किया था। एट फर्स्ट आई लाफ्ड सिनिकली व्हेन आई हर्ड द नेम। शुरुआत में इस इंसान के बारे में जब मैंने सुना था तो मुझे बहुत हंसी आई। What do you do? I asked. Teach people how to bend spoons with their thoughts. आजकल तो आपको पता ही है। ये जब इस इंसान से मिले थे तो उन्होंने पूछा था कि भाई साहब आप करते क्या हो? क्या लोगों को अपने थॉट्स यानी अपने विचारों को इस्तेमाल करते हुए स्पून, यानी स्पून को कभी कभी लोग बेंड करते हैं, आपको पता होगा। कभी कभी स्पून को बेंड करना भी एक प्रोसेस होता है कुछ ट्रेनिंग्स के अंदर। ऑफ कोर्स दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग। लेकिन उन्होंने ऐसे पूछा था उस इंसान से, बट वो इंसान इनके बातों से बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं रहा।
बिल्कुल he was not disturbed. He wasn't deterred by my cynicism. He smiled and patiently explained me that mind could be mastered, and we humans, once doing this, could do whatever we wanted to. Wow, this is a beautiful statement, right? तो जब इन्होंने उस मोटिवेशनल स्पीकर से या ट्रेनर से उन्होंने पूछा था कि भाई साहब आप क्या करते हो, और ऐसे मजाक किया था कि क्या आप भी लोगों को अपने 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 थॉट्स से, अपनी सोच से स्पून को बेंड करने की चीजें जो है वो आप सिखाते हो। तो उस इंसान ने हंसते हुए मुस्कुराते हुए बहुत ही पेशेंटली उन्होंने जवाब दिया कि हम ह्यूमन बींग्स, इंसान लोग, हम हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन चीज है जिसको हम कहते हैं माइंड। एंड जब कोई अपने मन पर एक कंट्रोल, अपने माइंड को कैसे कंट्रोल करना, अगर इस चीज को कोई सीख लिया तो अपने लाइफ में हम जो भी पाना चाहते हैं, जो भी हासिल करना चाहते हैं, शायद ये खुशी की जिंदगी हो सकती है, अच्छे रिलेशनशिप की बात हो सकती है, या लाइफ में फाइनेंशियल ग्रोथ की हो सकती है, किसी भी चीज को हम लाइफ में अचीव कर सकते हैं जो वॉट एवर वी वॉन्टेड। एंड वो बहुत ही सीरियसली इन चीजों के बारे में बता रहा था। He didn't rant and rave about attitude and compassion and emotions. He taught about thinking. While everyone else in the world was telling us what to think, this person was telling us how to think. क्या बात है। तो जब स्टीव शैंडलर उस लेखक से बात कर रहे थे, उनको एक चीज महसूस हुआ कि बाकी सारे लोग, दुनिया के जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, उन्होंने लोगों को मतलब हमें क्या सोचना चाहिए, इस पर बाकी सारे लोगों ने ज्ञान दिया लोगों को। लेकिन इस इंसान से जब इनकी मुलाकात हुई तो इन्होंने देखा यहां पर कि ये जो इंसान जिसकी बात यहां पर हो रही है, वो इंसान लोगों को कैसे सोचना ये बता रहा था। देखिए, क्या सोचना, इट्स गुड व्हाट टू थिंक, लेकिन कैसे सोचा जाए ये उससे ऊपर है दोस्तों। क्योंकि कैसे सोचा जाए, इसमें बहुत सारी गलतियां हम लोग करते हैं। We don't know how to think. Sometimes we don't know the way the mind is working. तो इनको बहुत अच्छा लगा जब इस इंसान से मिले, क्योंकि ये लोगों को बता रहा था कि how to think. His name is Dennis Deaton. उनका नाम था Dennis Deaton. Forget the name, but let's listen to the experience. The first time I heard him speak, it was to a group of car salespeople who were having a bad sales month. I was doing the dealership advertising at the time, and the sales manager asked me to hire a motivational speaker for a mid-month breakfast they were having for all employees to try to rally the sagging sales figure. इसका मतलब एक डीलरशिप की एडवर्टाइजमेंट स्टीव शैंडलर कर रहे थे, कार डीलर्स जो लोग कार बेचते थे, सेल्स टीम। और वो जो सेल्स टीम जो है उनका सेल्स बहुत कम हो चुका था, गिर चुका था। तो स्टीव शैंडलर को बताया गया कि एक मोटिवेशनल स्पीकर को बुलाया जाए या ट्रेनर को बुलाया जाए ताकि उन लोगों को ट्रेनिंग देकर उनकी सेल्स को बढ़ाया जाए, राइट। और मिड मंथ यानी मिडल ऑफ द मंथ, मे बी 15th और सेकेंड और थर्ड वीक, सेकेंड वीक इन बिटवीन, तो ब्रेकफास्ट का एक मीटिंग अरेंज किया गया था एम्प्लॉयज के साथ जिन लोगों का सेल्स गिर रहा था। और उस वक्त इस इंसान से मुलाकात हुई। दोस्तों देखिए, यहां पर पॉइंट्स हमें बताया जा रहा है इनडायरेक्टली, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट, ओके। ये मुलाकात की बात नहीं है, इन्होंने जो सीखा वहां से उस पर यहां पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। चलिए, आई हैड नो आइडिया who to hire because I hated motivational speakers. वैसे स्टीव शैंडलर को तो मोटिवेशनल स्पीकर से नफरत हुआ करता था, तो इन्हें पता नहीं चला कि किसको हायर किया जाए सेल्स ट्रेनिंग देने के लिए उन लोगों को जो कार बेच रहे थे, राइट। And a friend of mine recommended Dr. Deaton, so I hired him without ever having heard him and not expecting much of anything. तो इनको तो मोटिवेशन स्पीकर से वैसे भी मतलब ज्यादा ये बिलीव नहीं करते थे, लेकिन उनके दोस्त के कहने पर एक मोटिवेशनल स्पीकर को इन्होंने हायर कर लिया था, बुलाया गया था वहां पर। What I heard when Deaton spoke was completely different than what I used to. He was not interested in one thing, the interplay between the mind and the brain. He spoke with passion about his subject, but not to artificially pump up the crowd, right? He spoke so that they would become excited about knowing something about how their biocomputers worked.
He spoke with a commitment to be useful rather than just entertaining. और जैसे डॉक्टर डीटन को बुलाया गया ट्रेनिंग देने के लिए सेल्स टीम को, इनको थोड़ा डिफरेंट लगा। बाकी लोगों की तरह इनको वो कहते हैं ना ऊंट पटान वाली बातें, जैसे राइट मोटिवेट करना, ये सब छोड़कर इन्होंने ज्यादा ध्यान दिया लोगों को कुछ सिखाने पर, लोगों को अपनी सुपर कंप्यूटर या बायो कंप्यूटर जिसको हम लोग बात करते हैं ना, दोनों कानों के बीच में जो है वर्ल्ड्स बेस्ट कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट यहां पर है, राइट। तो इस बायो कंप्यूटर के बारे में ज्यादा बताया गया, माइंड को कंट्रोल करने की जो चीज होता है ना टेक्निक, उस पर ज्यादा ध्यान दिया गया और इनको बहुत अच्छा लगा, राइट। सो इनफैक्ट अच्छा लेट्स यस, he spoke with commitment to be useful rather than just entertaining. मतलब उन्होंने ज्यादा ध्यान अपने बारे में बताने से या एंटरटेनमेंट से ज्यादा लोगों के फायदे पर उन्होंने ध्यान दिया। Not only did the sales people go out and have their biggest sales month of that year after Deaton's speech, but I felt my entire life change from it. कितना बढ़िया यहाँ पर एक्सपीरियंस आप देख सकते हैं। And I made a vow after that, after he had left the building, that someday I would be working with him. I wanted to join him in the work he was doing, teaching about the mind. I somehow knew that I forced myself to know how to teach it. I myself could learn it, right? तो उनकी बातों को सुनने के बाद उस दिन इनको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उस मीटिंग के बाद वो जो सेल्स टीम जिसकी हम लोग बात कर रहे थे, जो लोग कार बेच रहे थे, वो लोग फील्ड में गए और उस महीने में उस साल के सबसे ज्यादा सेल्स उन्होंने अचीव किया। और उस दिन से स्टीव शैंडलर खुद अंदर मन ही मन उन्होंने ये डिसाइड कर लिया, इन्होंने वो निर्णय ले लिया था कि मैं इस इंसान के साथ जरूर रहना चाहूंगा, उनके साथ में काम करना चाहूंगा और अपने माइंड के बारे में ज्यादा सीखना चाहूंगा। चलिए दोस्तों, हम लोग भी लोगों के साथ रहते हैं हमेशा। इस नरेशन से यहां पर जो कहानी हमें या एक्सपीरियंस हमारे सामने जो रखा जा रहा है लेखक के दौरान, लेखक की तरफ से, इस कहानी के दौरान हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हम लोगों से मिलते हैं, हमें वो 10 में से एक इंसान, मतलब 11, मतलब जस्ट अनदर पर्सन, जैसे बाकी सारे लोग मार्केट में रहते हैं, जो मार्केट में सभी लोग बातें करते हैं, सेल्स के लोग बातें करते हैं, वैसे हमें बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमें कुछ डिफरेंट तरीके से लोगों से कनेक्ट होना चाहिए। क्योंकि पीपल जॉइन पीपल, पीपल डोंट जॉइन कंपनी। पीपल बाय पीपल्स ट्रस्ट, बिलीफ बिफोर दे बाय द प्रोडक्ट। तो हमें भी ये शायद अप्लाई करना होगा हमारे लाइफ में, हमारे बिजनेस के अंदर, कि जब हम लोगों से मिले, अपने बारे में ज्यादा बात करने से ज्यादा प्रोडक्ट के बारे में तो हमें बताना चाहिए, बिजनेस के बारे में बताना चाहिए, वो तो है दोस्तों, लेकिन उससे ज्यादा मैं ये पॉइंट हमेशा लोगों को कहता हूं कि जब मैं ट्रेनिंग प्रोग्राम पे स्टेज पे जाता हूं या कहीं पर किसी ग्रुप से मिलने जाता हूं या एक हॉल में जब लोग बैठे रहते हैं, ऑडिटोरियम हो सकता है, स्टेडियम हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, 5 लोगों का मीटिंग या 5,000 लोगों का मीटिंग, मैं हमेशा लोगों को पहले ये कहता हूं कि आज ये प्रोग्राम जो हो रहा है दोस्तों, ये मेरे बारे में नहीं है। आज का ये जो डिस्कशन है, ये अपने बारे में बताने के लिए बिल्कुल नहीं है, ये आपके बारे में है। और ये देखिए, पढ़ो विद प्रेम प्रेम के अंदर भी मैंने टाइटल रखा पढ़ो विद प्रेम, क्योंकि इसके अंदर मैं पढ़ना चाहता हूं आप लोगों के साथ। मैंने कहा था फर्स्ट वीक में कि दिस इज अबाउट यू, दिस इज अबाउट अस, दिस इज अबाउट अस लर्निंग। तो उनको भी उस दिन बहुत ही अच्छा लगा उस आदमी से मिलकर, डीटन से मिलकर, क्योंकि उनको लगा कि इस इंसान के साथ मुझे रहना चाहिए और इससे मुझे सीखना चाहिए। दोस्तों, क्या रोज हम लोगों से मिलते हैं, रोज हम लोगों से बातें करते रहते हैं, हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, इंस्पायर करते हैं, कभी कभी जूम पर होता है, कभी कभी फिजिकली हम लोगों से मिलते हैं, तो हमें भी ऐसे एक इंप्रेशन लोगों पे, लोगों के साथ, लोगों के माइंड में क्रिएट करना होगा या छोड़ना चाहिए। वहां पर इंप्रेशन ऐसे बनाना चाहिए कि लोगों को लगना चाहिए, हाँ, इस इंसान के साथ मुझे भी रहना चाहिए, इस आदमी के साथ मुझे भी काम करना चाहिए, इस आदमी के साथ मुझे भी आगे बढ़ना चाहिए। तो मेक श्योर दैट आज के बाद आप भी इसे अपनी लाइफ में अप्लाई करें। चलिए हम पढ़ते पढ़ते आगे भी बढ़ेंगे, राइट। और बिकॉज आई फेल्ड सो ऑफन,
आई सक्सीड। चलिए, अब सक्सेस की बात हो रही है यहां पर। वो कहते हैं कि मैं बहुत ही ज्यादा लगातार मैं फेल हो रहा था, असफल हो रहा था, अपनी अपनी कोशिशों में मैं हार रहा था, और बार बार मैं कोशिश करता रहा, उसका नतीजा मैं एक दिन सफल बन गया। ये टाइटल है, राइट? बिकॉज आई फेल्ड सो ऑफन आई सक्सीड। चलिए देखते हैं यहां पर लेखक हमसे क्या शेयर करना चाहते हैं। One of the things that made my eventual partnering with Deaton so interesting was how different he and I were from each other. He had succeeded throughout his life at sports, in academics, you name it. इसका मतलब ये कह रहे हैं कि उस इंसान से जब डीटन से इनकी मुलाकात हुई और उनके साथ काम करने लगे, तो इन्होंने ये पहचान लिया था कि उस इंसान के साथ जब कंपेयर किया गया, वो इंसान अपने लाइफ में काफी सक्सेसफुल रहे। शायद वो स्पोर्ट्स हो सकता है, पढ़ाई की बात हो सकती है, अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों में वो बहुत आगे बढ़ चुके थे, बढ़ रहे थे डॉक्टर डीटन। और ये खुद यानी स्टीव शैंडलर इतने सक्सेसफुल नहीं थे उस वक्त, जब इस किताब को लिखने से पहले की बात कर रहे हैं। आई ऑन द अदर हैंड, अगर दूसरी तरफ की बात करें, एक तरफ तो वो इंसान खुद बहुत ही सक्सेसफुल थे, मैं दूसरी तरफ, आई ऑन द अदर हैंड हैड नॉट, मैं सफल नहीं रहा। But despite our different results with success, Deaton and I took an immediate liking to each other, and he taught me everything he knew. He was completely unselfish about teaching his work. His trademarked visioneering process for engineering goals into reality was something I began immediately to apply to my own life. ये कहते हैं कि जब उस इंसान से मुलाकात हुई और उनके साथ वो काम करने लगे, इन्होंने ये पहचान लिया था, इन्होंने ये महसूस किया था कि वो इंसान काफी सक्सेसफुल है हर चीज में, और ये इतने सक्सेसफुल नहीं थे खुद। और यहां पर एक और चीज इन्होंने नोटिस किया जो इनको बहुत ही अच्छा लगा, कि वो डॉक्टर डीटन जिनकी बात हो रही है यहां पर, वो इंसान इनको वो सब कुछ सिखाने के लिए तैयार थे। वो सेल्फिश नहीं थे बिल्कुल, और सिखाने के लिए तैयार थे, ओपन माइंडेड थे इन्हें वो सारी चीजें सिखाने के लिए जो ये नहीं जानते थे। और ये इनको बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और विजनियरिंग, इंजीनियरिंग के अंदर स्टार्टिंग में इन्होंने विजन लगा दिया, तो विजनियरिंग एक प्रोसेस है जिसको उन्होंने सिखाया था, जिसको ये कहते हैं कि इंजीनियरिंग गोल्स इनटू रियलिटी। अपनी लाइफ में अगर हम सपने देखते रहते हैं, ड्रीम्स, वो हमेशा के लिए सपना रह जाता है। अगर सपनों को रियलिटी में कन्वर्ट करना चाहिए तो दोस्तों उसका एक प्रोसेस होता है, जो हम लोग हमारी ट्रेनिंग्स के अंदर हम बात करते हैं। तो इन्होंने भी यहां पर बताया कि विजनियरिंग एक प्रोसेस है जिसके अंदर अपनी लाइफ की ड्रीम्स को गोल्स में कन्वर्ट करने का एक इंजीनियरिंग प्रोसेस हुआ करता था, राइट? इट वॉज समथिंग आई बिगैन इमीडिएटली टू अप्लाई इन माई लाइफ। तो ये कहते हैं कि वो उनसे उन्होंने सीखा, सिर्फ सीखा ही नहीं, उसे इन्होंने अपने लाइफ में अप्लाई भी किया। चलिए, और 5 मिनट बाकी हैं। तो बिकॉज इट वॉज बेस्ड ऑन द वर्किंग्स ऑफ द ब्रेन, इट वर्कड। ये कहते हैं कि वो सारी चीजें जो इनको सिखाया गया उससे इन्होंने अप्लाई किया, क्योंकि वो सारी चीज अपने आप पर, अपनी ब्रेन पर, अपनी माइंड पर प्रोसेस एक्टिवेट कराने का एक टीचिंग रहा, तो उसे इन्होंने अप्लाई किया और वो काम भी किया, मतलब वो बिल्कुल काम आया। देयर वॉज नो इमोशनल पंप इन, राइट? इसका मतलब है वो सिर्फ बातों की, वो कहते हैं ना, बातों में महल बनाना, राइट? तो ऐसे सिर्फ बातों की, ऊट पटान वाली बातों की यहां पर चर्चा नहीं हो रहा था। ये एक प्रैक्टिकल और पॉसिबल चीज है। इट वॉज अ cold-blooded course in how to get your mind and brain to interact in such a way that your vision for your own future becomes reality. वारे वाह! ये कहते हैं कि अपने दिल और दिमाग के बीच की इंटरैक्शन की बात हो रही थी वहां पर, जिसके अंदर डीटन, जिनकी बात हो रही है यहां पर, राइट? डीटन ने इनको ये सिखा दिया कि भाई तुम अपने फ्यूचर में
अपनी फ्यूचर में जो भी तुम हासिल करना चाहते हो वो काम तुम कर सकते हो अगर अपने दिमाग और दिल की दोनों के बीच की जो इंटरेक्शन जो है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हम कुछ काम करना चाहते हैं, दिल तो मान लेता है लेकिन दिमाग काम नहीं करता है। कभी कभी दिमाग में जो आप जो करना चाहते हैं वो काम करने के लिए दिल नहीं देता है। और कभी कभी इस मतलब इन दोनों के कुरुक्षेत्र के बीच में शायद हम अपने वक्त को बर्बाद कर देते हैं, अपनी पैसों को बर्बाद कर देते हैं, अपने कभी कभी भविष्य को भी हम लोग बर्बाद कर लेते हैं। तो माइंड एंड ब्रेन यानी हार्ट एंड ब्रेन, जो कहते हैं ना इमोशंस आर कमिंग फ्रॉम योर हार्ट एंड योर ब्रेन इज अ लॉजिकल पार्ट ऑफ यू, लाइक इट्स लाइक द इंटेलेक्ट, इंटेलिजेंस। तो कभी कभी हमें अपना बुद्धि का इस्तेमाल भी करना पड़ता है, अपनी भावनाओं को भी संभालना पड़ता है, अपनी फीलिंग्स को भी संभालना पड़ता है। तो दोनों को जब हम एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार कर लेते हैं, कल जैसे आई वॉज विद टीम अर्जुन इन हैदराबाद, राइट, आई हैड अ प्रोग्राम, और वहां पर आई वॉज टेलिंग द पीपल कि इमोशंस होनी चाहिए, बिकॉज हम लोग इंसान हैं, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, इमोशंस होनी चाहिए लेकिन हमें इमोशनल नहीं होना चाहिए। सो द सेम वे स्टीव शैंडलर यहां पर कहते हैं कि इनको वो सीख वहां पर मिली डॉक्टर डेटन से कि मैं अपने लाइफ में अपने दिल और दिमाग को कैसे मैं सिंक्रनाइज करूं, क्योंकि बोथ आर वेरी पावरफुल। योर हार्ट gives you the strength, sometimes your brain gives you the logic of proceeding forward। इन दोनों को कैसे एक साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार किया जाए, ये टेक्निक हमारे प्यारे लेखक ने सीखा। और उसके बाद चलिए लेट्स सी, राइट, interact in such a way that your visions for your future become reality। it was clear and it was effective। वो साफ साफ एकदम क्लियरली उनको बताया गया था, राइट। एंड चलिए नेक्स्ट पैराग्राफ, यूजिंग डीटन्स सिस्टम, जो सिस्टम इन्होंने सीखा था डीटन से, उस सिस्टम को इन्होंने इस्तेमाल किया। आई स्टार्टेड सेटिंग एंड अचीविंग गोल्स एट एन अनयूजुअल फास्ट पेस। ये कह रहे हैं कि उनके लाइफ में जो गोल्स ये अचीव करना चाहते थे वो सारी चीजें इन्होंने एक लिस्ट बनाना शुरू किया और एक एक करके बहुत ही तेज अपनी ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया इन्होंने। माई होल लाइफ टर्न्ड अराउंड, जिंदगी पलट चुकी थी। इंस्टेड ऑफ यूजिंग माई ब्रेन ऑल डे टू पिक्चर व्हाट आई फियर्ड, he had taught me to use it to picture what I wanted। What a beautiful thing दोस्तों। ये कह रहे हैं कि इससे पहले अपने लाइफ में रोज अपनी ब्रेन का इस्तेमाल क्यों कर रहे थे, किस चीज के लिए कर रहे थे? इन्होंने अपनी ब्रेन का इस्तेमाल हमेशा अपने डर को देखने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। और इसका मतलब है कि डर डर के जी रहे थे आज तक, या उस वक्त तक ये डर के जी रहे थे। लेकिन उस इंसान के सिस्टम को समझने के बाद अपनी ब्रेन को, अपनी बुद्धि को डर जो है उससे देखने के अलावा, मतलब डर को अपने दिमाग से हटाकर अपनी ब्रेन में अपनी ड्रीम्स को देखना इन्होंने शुरू किया। डर के जीने का जो जिंदगी है उसे इन्होंने खत्म कर डाला और अपने सपनों को और जो ये चाहते थे वो सारी चीजों को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए अपने ब्रेन का इस्तेमाल करना इन्होंने शुरू किया। दोस्तों, विनर्स एंड लूजर्स, अगर मैं शिव केरा जी की अगर मैं लैंग्वेज में कहूं तो विनर्स और एंड लूजर्स के बीच का फर्क बस यही है। विनर्स अपने ब्रेन को हमेशा डर से भर देते हैं, उनके दिमाग में हर चीज के लिए डर होता है, डर, हर काम करने से पहले डर, हर सोच से पहले डर, हर सपनों को देखने से पहले डर। और लूजर्स हमेशा इस डर की वजह से लाइफ में लूजर बन के रह जाते हैं। लेकिन विनर्स, उनको पता है डर को कैसे हैंडल करना चाहिए, डर को अपने दोस्त कैसे बना लेना चाहिए, राइट। तो स्टीव शैंडलर ने भी यही काम किया यहां पर, राइट। एंड ही हैड टॉट मी टू यूज इट टू पिक्चर व्हाट आई वांटेड। उनको जो नहीं चाहिए, जो डर से हमें ज्यादा जो नहीं चाहिए वो याद आता है दोस्तों। लेकिन डर को दूर करने का मतलब यह है हम अपना फोकस लाइफ में जो नहीं चाहिए उससे हटाकर फोकस उस चीज पर रखें
जो हमें चाहिए। कितना मतलब खूबसूरत तरीके से यहां पर उन्होंने बताया हमें, राइट। माई ऑडियंस टू वेर कनेक्टिंग विथ मी, ये कह रहे हैं कि जब ये खुद ट्रेनर बन गए, खुद लोगों को सिखाना शुरू किया, उस वक्त इनके सामने जो प्रेक्षक जो लोग ऑडियंस थे, उनसे भी ये आसान तरीके से कनेक्ट हो पाए। And when I spoke of my former life, they could see the truth in the misery of it. Most of them could identify. ये कह रहे हैं कि जब ये लोगों के साथ कनेक्ट होना शुरू किया, लोगों को अपनी पुरानी जिंदगी की एक्सपीरियंस बताना शुरू किया, तो लोगों को बहुत आसान तरीके से ये समझ में आ गया था कि इनसे मतलब इनकी पुरानी जिंदगी में, पुरानी लाइफ में ये कैसे जी रहे थे, right? And it wasn't hard for them to verify what a losing proposition I had been. और लोगों को ये भी पता चला कि ये इंसान असफल रहे आज तक, क्योंकि इनकी दिमाग और दिल के बीच की गैप की वजह से और डरे हुई जिंदगी की वजह से। If visioneering could work for me, they realized it could work for everyone and anyone. इसका मतलब है जब इन्होंने लोगों से शुरू किया शेयर करने कि विजनरिंग का प्रोसेस, जिसमें अपने दिमाग को डर हटाकर अपनी ड्रीम से भरने से अपनी लाइफ में वो सारी चीजें हम हासिल कर सकते हैं जो हम हासिल करना चाहते हैं, ये लोगों को बहुत आसान तरीके से समझ में आ गया, क्योंकि ये खुद लोगों के सामने एक साक्षी बनकर, एक उदाहरण बनकर, रोल मॉडल बनकर खड़े थे कि इस प्रोसेस को अप्लाई करने से पहले वो क्या थे और उसे अप्लाई करने के बाद वो क्या बन गए, राइट। एंड फाइनली दोस्तों, लास्ट पैराग्राफ आपके लिए। Soon it was becoming fun for people to take some of the seminars from a lifelong winner such as Dennis and then hear the perspective of a late bloomer such as myself. ये कह रहे हैं कि लोगों को बहुत ही एक मजेदार अनुभव हो गया था, क्योंकि जब भी डीटन, इनके जो ट्रेनर या इनके जो दोस्त जो इनको बता रहे थे इस सिस्टम के बारे में, जो सिखा रहे थे, उनके सेमिनार्स में ऐसे हो गया था कि लोगों को मजेदार अनुभव हो रहा था पहले डीटन को देखना, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में वो सारी चीजें अप्लाई किया और बहुत ही सफल रहे, और उसके बाद उन लोगों को सुनने को मिला, देखने को मिला ये स्टीव शैंडलर, जो अपने लाइफ में बहुत समय के बाद, यानी बहुत लेट, बहुत वक्त बिताने के बाद, अपनी लाइफ में बहुत टाइम वेस्ट करने के बाद, जो इंसान जिसने सीख लिया था, उसके सक्सेस को भी देखने का मजेदार अनुभव लोगों का हो चुका था दोस्तों। एंड many people who might have been skeptical about our principles really working would hear my life stories and think, well, if he can do it, I can. I was never that bad. और कभी कभी स्टीव शैंडलर को सुनकर लोगों को ऐसे फीलिंग आना शुरू हो गया था कि अच्छा, अगर इस इंसान को, अगर ये काम कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही लेट अपने लाइफ में उठे, जागना इनके साथ लाइफ में बहुत लेट हुआ, बहुत वक्त लगा दिया इन्होंने, अगर इनके साथ ये काम कर सकता है तो मेरे साथ भी ये काम कर सकता है, ऐसे फीलिंग लोगों को आना शुरू हो गया था दोस्तों। एंड यहां पर बता रहे थे कि एक टाइटल है, सिंपल पैराग्राफ में पढ़ना चाहूंगा बिफोर वी वाइंड अप टुडे, 3 more minutes. You are not as low as I was. स्टीव शैंडलर हमें कह रहे हैं कि आप लोग मेरे जैसे बहुत ही गिरा हुआ इंसान तो नहीं है। I was a truly confused non-achiever. ये खुद के बारे में इतना मतलब ओपनली, खुला सा मतलब यहां पर हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि मैं अपने लाइफ में एकदम कंफ्यूज्ड रहा। जिस इंसान को अपना बुद्धि का इस्तेमाल करना नहीं आ रहा था, अपने दिल और दिमाग के बीच की जो सिंक्रोनाइजेशन है वो कैसे करना ये नहीं जान रहा था, राइट। आई वोंट गो इनटू ऑल ऑफ इट। वो कह रहे हैं कि वो सारी चीजें, पुरानी चीजों के अंदर मैं आपको लेकर जाना नहीं चाहूंगा। मैं आपको सच ये बताना चाहूंगा, टेक माई वर्ड फॉर इट, I still sometimes notice that the wreckage of my past floats ashore for me to clean up. It's a grim but good reminder. As I pick up the pieces of the shattered Titanic that was me, I am reminded of how easy it was to live at so low and confused a level.
right? You cannot tell me anything about yourself that would surprise me. You cannot offend me. You cannot shock me. You couldn't be focusing on this book if you were as low as I once was. You couldn't be holding it in your hands or comprehend it. Reading this, you're already ahead of where I was. कितना बढ़िया इन्होंने कहा यहां पर लास्ट में कि दोस्तों ये कह रहे हैं कि वो खुद अपने लाइफ में टूट चुके थे, बहुत पीछे रह चुके थे, और कह रहे हैं कि आप इतने अनलकी नहीं हो मेरे जैसे, क्योंकि आज आपके हाथ में ये किताब आ चुका है, आप इसे पढ़ रहे हैं, यहां से आप सीख रहे हैं। इसका मतलब है कि आप लोग मेरे से बहुत आगे हैं और आपके लाइफ में आप जरूर बहुत आगे चले जाएंगे, क्योंकि मैं बहुत पीछा रहा, राइट? पीछे रहा इस प्रोसेस के अंदर। इनफैक्ट द लोअर यू आर नाउ, द मोर फन यू आर गोइंग टू हैव इट have if you take reinvention on a personal project. ये कहते हैं कि यहां पर बहुत ही खूबसूरत चीज, अपने लाइफ में रीइन्वेंटिंग योरसेल्फ, अपने आप को फिर से इन्वेंट करने का जो प्रक्रिया है, इसको एक पर्सनल प्रोजेक्ट बना लेना। आई थिंक दिस इज समथिंग विच वी शुड वाइंड अप टुडे। आज का समरी सारांश यहीं पर होना चाहिए, राइट? इट विल बी लाइक मोर फन। ये कह रहे हैं कि यहां पर कि अगर आपने अपने लाइफ में अपने आप को री इन्वेंट करने के प्रोसेस को एक नया प्रोजेक्ट बना लिया आज से। प्रोजेक्ट का मतलब आपको समझ में आ गया ना दोस्तों? ये आपका एक 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 टास्क होना चाहिए, एक असाइनमेंट हो जाना चाहिए। आज के बाद आपने लिखा होगा ना, टू डू थिंग्स, मुझे बैंक में जाके चेक डिपॉजिट करना है, किसी को प्रेजेंटेशन देना है, कहीं पर जाके किसी से मिलना है। ये कह रहे हैं कि उसी प्रकार आपको ये जो प्रोसेस है, प्रक्रिया, यानी अपने आप को री इन्वेंट करने की जो चीज है ना, इसे अपने लाइफ में एक मिशन बना लेना, एक पर्सनल प्रोजेक्ट बना लेना। क्योंकि जब इसे अपना एक पर्सनल प्रोजेक्ट आप बना लोगे तो दोस्तों ये कह रहे हैं कि ये एक मजेदार अनुभव हो सकता है आपके साथ। आप इसे एक बढ़िया एक एक्सपीरियंस बना सकते हैं अपने लाइफ में, क्योंकि जब आप अपने लाइफ में ये सारी चीजें अप्लाई करोगे, जो रियलिटी मतलब ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस जो यहां पर बताया जा रहा है, आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक में भी सेम बुक। तो ये कह रहे हैं कि इसको एक पर्सनल प्रोजेक्ट बना लीजिए और उसका मजा आएगा आपको और इसका पूरा फायदा आप उठाइए, राइट? तो दैट इज अबाउट द चैप्टर नंबर 35 by Steve Chandler in the book called Reinventing Yourself, और चैप्टर का नाम है फिर से आपके लिए इंजीनियरिंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी। तो 100% आज प्रोसेस के अंदर हम लोग गए नहीं, बुरा मत मानिएगा। इंजीनियरिंग ड्रीम्स इनटू रियलिटी प्रोसेस के अंदर हम नहीं गए, क्योंकि उससे पहले उस प्रोसेस का इंट्रोडक्शन यहां पर हो रहा था, उसका इंपॉर्टेंस यहां पर एडिफिकेशन या उसकी वैल्यू एडिशन, वैल्यू क्रिएशन हो रहा है यहां पर, ताकि जब इस प्रोसेस को हमारे सामने रखा जाए नेक्स्ट वीक में, जब हम पढ़ेंगे इस सेशन के अंदर, पढ़ो विद प्रेम के अंदर, तो हम उसको और ध्यान देके सुने और बहुत सीरियसली इसको हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं। चलिए 7:46 हो चुका है, आज 1 मिनट पार कर चुका हूं मैं अपनी डेडलाइन से। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, बहुत मजा आया आज आप लोगों के साथ पढ़कर।